Welcome everybody. This is our sixth video in question bank / numerical series for chapter magnetic effects of current of class 10. Till now we have made around 5 videos in this series and around 6 video in theory part of this chapter. If you have not checked out those videos, then you can watch them on our channel. Name of channel is Point Basics, and there is playlist for all these videos, and name of that playlist is class 10 physics. So please go and watch those videos. They will also be helpful to you, and if you like these videos, you find them anyhow useful, then press the like button, share this video with your friends, your classmates, and subscribe to our channel. More you share, more you subscribe, more we feel motivated to such content, and it is a zero cost way for you to support us. So please, if you like our content, then do like, share, and subscribe. It is a wonderful way to make us to keep us motivated in making this content. So with this, let's start today's video. We have made up we have solved up to question number 12 for second exercise in our previous video, and today we are going to move forward from that. We will start with question number 13. So here is question number 13, and we are going to start with this. So in question number 13, it is mentioned that there is a magnetic compass needle placed in the plane of paper near point A. So suppose this is point A, and this is our magnetic compass, and it has a some needle which we are showing on the screen. Now, in which plane should a straight current carrying conductor be placed so that it passes through point A? Means your conductor should pass through point A, so it can be vertical and it can be horizontal, or it can be at some angle, and there is no change in deflection of the magnetic field of the compass. And we have to also find out the direction of current, and so in which direction current should flow. So first of all, if we use the formula that force on any current carrying conductor is Bl sin theta. Okay. Now from this formula, we know that if angle between I and L, means current and length, is 90 degree, sorry 0 degree, then there is no force acting on conductor. This is the basics we know. That means but in this case, this compass is not a conductor. compass conductor नहीं है, तो कंपास के केस में आप ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते. जो कंपास है, कंपास बनता है मैग्नेट से, एंड मैग्नेट से, एंड it acts according to the magnetic field. कंपास उसी डायरेक्शन में ओरिएंटेड कर लेता है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होती. और आपको ये पता है कि नॉर्मली कंपास किस डायरेक्शन में पॉइंट करता है. नॉर्मली कंपास नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करता है. मींस अगर हमारा नॉर्मल कंपास ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है तो ऊपर हमारा क्या होना चाहिए, नॉर्थ, और यहाँ पे नीचे हमारा क्या होना चाहिए, साउथ पोल होना चाहिए. ओके. तो अब हम क्या करते हैं, हम आपको 2 डिफरेंट डायरेक्शंस में ओरिएंटेशन करके दिखाते हैं.
कि उन ओरिएंटेशन से कंपास पे क्या इफेक्ट पड़ेगा फील्ड का। तो ये हमारा पॉइंट ए है, ये इसके पास एक कंपास रखा है और ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, मींस ये नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है और नीचे तो साउथ होगा। तो जो भी हम यहाँ पे कंडक्टर रखते हैं उसका नॉर्थ ऊपर की तरफ जाना चाहिए और साउथ नीचे की तरफ होना चाहिए। और आप ऐसे बोल सकते हो कि जो कंडक्टर है, कंडक्टर की फील्ड कैसे होनी चाहिए, नॉर्थ टू साउथ। कंडक्टर की फील्ड ऐसे डाउनवर्ड होनी चाहिए, तभी अगर कंडक्टर की फील्ड डाउनवर्ड होगी तभी आपका जो कंपास है वो एज इट इज पॉइंट कर पाएगा। बिकॉज अभी आपका कंपास ऊपर की तरफ फील्ड कर पॉइंट कर रहा है, तो मीन्स सपोज कीजिए ये अर्थ की फील्ड की वजह से ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो अभी अर्थ की फील्ड ये है, तो आपके कंपास की फील्ड भी यही होनी चाहिए, सो दैट वो इसमें ऐड हो जाए और जो कंपास का पॉइंट है वो डेविएट ना हो फर्दर एनी हाउ। तो नाउ सपोज कीजिए अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, हम एक कंडक्टर लेते हैं, ये सपोज हमारा कंडक्टर, इस कंडक्टर में हम लेफ्ट टू राइट करंट फ्लो करवाते हैं। दिस इज लेफ्ट पॉइंट, दिस इज राइट पॉइंट, हम इसमें लेफ्ट टू राइट करंट फ्लो करवाते हैं, तो इसमें करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो इस सिनेरियो में अगर आप इसमें लेफ्ट टू राइट करंट फ्लो करवाते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, आप राइट हैंड थंब रूल का यूज करोगे अगर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे क्या होंगे, नीचे वाली साइड से बैक की तरफ जाएंगे और ऊपर वाली साइड से फॉरवर्ड आएंगे, मींस ऐसे नीचे वाली साइड से वायर के बैक साइड में जाएंगे और ऊपर वाली साइड से वायर के फ्रंट साइड में नीचे की तरफ आएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और आपको ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या शो करती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें वही डायरेक्शन मिल गई मैग्नेटिक फील्ड की जो हमें चाहिए थी स्टार्टिंग में। सो अगर आप इस ओरिएंटेशन में कंडक्टर को रखते हो और इसमें लेफ्ट टू राइट करंट फ्लो करवाते हो, प्रोवाइडेड कि जो कंपास है वो इस वायर के आगे की तरफ है, मींस अगर ये वायर स्क्रीन से पास होके जा रही है तो जो कंपास है वो आपकी तरफ होना चाहिए। तो इस सिनेरियो में मैग्नेटिक जो कंपास की निडल है वो डिफ्लेक्ट नहीं होगी। अगर आप करंट की ओरिएंटेशन को रिवर्स कर देते हो, अगर आप करंट के ओरिएंटेशन को रिवर्स कर देते हो तो जो अब आपकी फील्ड है, राइट हैंड रूल से आप अगर करते निकालते हो, तो अब आपकी फील्ड वायर के पीछे से नीचे की तरफ जा रही है। तो अब आपके कंपास को वायर के बैक साइड में होना पड़ेगा, सो दैट इस पे सेम फील्ड रहे जो इस पे स्टार्टिंग में थी और इस पे कोई रिफ्लेक्शन ना हो। सो ऐसे आप इस जो आपका कंपास है उसको डिफ्लेक्शन से बचा सकते हो, प्रोवाइडेड आप करंट की डायरेक्शन देखोगे और उसके हिसाब से आप उसको वायर के आगे पीछे रख सकते हो। ओके, सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व होता है। 14 की तरफ मूव करते हैं। Under what condition permanent electromagnet is obtained if current carrying solenoid is used? Support your answer with the help of label diagram. So अगर आपको परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है तो हम क्या करते हैं, हम एक सोलेनोइड लेते हैं और उस सोलेनोइड के अंदर हम क्या डाल देते हैं, सॉफ्ट आयरन को। ये हमने सॉफ्ट आयरन को डाल दी और अब इसको हम एक सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर दी, एक रेजिस्टेंस जो करंट को कंट्रोल करेगा वी आर, और हम जब इसको सर्किट को टर्न ऑन कर देते हैं तो सोलेनोइड से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। वो मैग्नेटिक फील्ड इस जो सॉफ्ट आयरन की कोर है इससे पास होती है, सॉफ्ट आयरन कोर, वो यहां से पास होगी
और ये जो आयरन का जो रोड थी ये मैग्नेटाइज हो जाएगी और ये क्या मिल जाएगी आपको, परमानेंट मैग्नेट की फॉर्म में मिल जाएगी। फिर आप इसको बाहर निकाल के यूज कर सकते हो। तो दिस इज द प्रोसेस कि कैसे आप एक परमानेंट मैग्नेट बना सकते हो। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15। हमें ये डायग्राम गिवन है, सो डायग्राम हम यहीं पे प्लॉट कर लेते हैं। आपके पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर से करंट फ्लो होता है जो कि ऊपर की तरफ है। हमारे पास दो पॉइंट है, पहला पॉइंट है P और ये डिस्टेंस है R1, दूसरा पॉइंट है Q एंड ये डिस्टेंस है R2। नाउ हमें ये बताना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दोनों पॉइंट पे, एंड ये बताना है साथ में कि किस पे फील्ड ज्यादा होगी और किस पे फील्ड कम होगी। और साथ में हमें ये गिवन है कि R1 इज ग्रेटर देन R2। तो पहले हम डायरेक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि आपकी रूफटॉप की तरफ जा रहा है। तो इसके लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। तो जब आप अपने थंब को ऊपर की तरफ करोगे और अपनी फिंगर्स को रोटेट करोगे तो आप ये पाओगे कि जो आपकी फील्ड है, जब आप इसको ऊपर से देखोगे तो ये आपको कैसे दिखाई देगी, एंटी क्लॉकवाइज। मीन्स ये वायर के बैक साइड में जाएगी, किस साइड से, राइट साइड से। ये आपकी राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। तो ये राइट साइड से वायर के बैक साइड में जाएगी और फिर लेफ्ट साइड से फ्रंट में आएगी। तो मीन्स अगर आप इस फील्ड को ऐसे रोटेट करते हो यहाँ पे, तो जब ये P पॉइंट से पास हो रहा होगा सर्कल, ऐसा कोई सर्कल, और सपोज कीजिए वही सर्कल Q पॉइंट से पास हो रहा है, तो P पॉइंट पे ये स्क्रीन के अंदर जा रहा होगा और Q पॉइंट पे ये स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहा होगा। तो अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो P पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इनटू द पेज, और Q पॉइंट पे डायरेक्शन हो जाएगी आउट ऑफ द पेज। ओके, नाउ अब हमें मैग्नीट्यूड की बात करनी है। इनटू द पेज और आउट ऑफ द पेज, अब ये किसकी बात है, ये डायरेक्शन की बात है। और मींस इनटू द पेज का मतलब होता है माइनस जेड डायरेक्शन, और आउट ऑफ द पेज मतलब होता है जेड डायरेक्शन। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे डायरेक्शन बना लें अपनी, हमारे पास तीन डायरेक्शन होगी, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। जो आपका कंडक्टर है वो वाई डायरेक्शन में है और फील्ड उस कंडक्टर के अराउंड सर्कल्स में लेगी। तो P और Q पॉइंट पे आपको फील्ड, P पॉइंट यहाँ पे x एक्सिस पर लाई करता है और Q पॉइंट यहाँ पे माइनस x एक्सिस पर लाई करेगा। तो P पे आपको जो फील्ड है वो माइनस जेड में जाती हुई मिलेगी और Q पे बाहर की तरफ आती मिलेगी, यानी कि z डायरेक्शन में आती हुई मिलेगी। नाउ जो मैग्नेटिक फील्ड है वेरीज इनवर्सली with distance, मीन्स डिस्टेंस बढ़ता है तो फील्ड कम होती है। तो फील्ड के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि अगर R इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि फील्ड डिक्रीज हो रही है, एंड अगर R कम हो रहा है इसका मतलब है कि फील्ड इंक्रीज हो रही है। तो हमें ये पता है that R1 is greater than R2, so R1 is greater than R2। तो हम यहाँ से बोल, अगर R1 ज्यादा है तो यहाँ की फील्ड कम हो गई, so B1 is less than B2, मीन्स R1 पॉइंट पे जो फील्ड है वो कम होगी R2 पॉइंट से, बिकॉज R2 पॉइंट कंपैरेटिवली क्लोजर है कंडक्टर के और R1 पॉइंट कंडक्टर से दूर। सो कंडक्टर के आप जितना पास होगे फील्ड उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी, कंडक्टर से आप जितना दूर जाओगे फील्ड उतनी ही वीक होती जाएगी। तो विद दिस क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। 16th की तरफ चलते हैं। तो इन क्वेश्चन नंबर 16 it is mentioned that a magnetic compass show a deflection when placed near a current carrying wire.
तो आपके पास कोई वायर है, ये हमने एक वायर डायर ड्रॉ कर ली, इसमें कोई करंट फ्लो कर रहा है, सपोज करंट अपवर्ड है, तो जो इसकी फील्ड लाइंस होंगी वो कैसे होंगी, जहाँ पे वो राइट साइड है जो हमारी और ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड से वायर के पीछे जाएंगे और फिर लेफ्ट साइड से वायर को ऊपर से क्रॉस करेंगे लाइक दिस। ओके, नाउ इसके क्रॉस हमने क्या कर दिया, कंपास को प्लेस कर दिया। तो हम यहाँ पे एक और फिर लाइन बना देते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी वैसे कर भी चुके हैं। अब यहाँ पे हम एक कंपास प्लेस कर देते हैं, ये हमने कंपास को प्लेस कर दिया। Now, how will the deflection of a compass get affected if the current in the wire is increased? Support your answer with the reason. Now, suppose कीजिए आप क्या कर देते हो, आप करंट इंक्रीज कर देते हो, आप क्या करते हो, I की वैल्यू इंक्रीज कर देते हो। जैसे ही I इंक्रीज होता है तो I के इंक्रीज होने से क्या इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे जहाँ पे पहले कंपास रखा था, पहले यहाँ पे पॉइंट फील्ड की वैल्यू कम थी, अब यहाँ पे फील्ड की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी तो जो कंपास के अंदर डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन विल बी मोर। तो डिफ्लेक्शन जो पहले कम थी अब वो और भी डिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाएगी। बट यहाँ पे भी क्राइटेरिया होता है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि ये ऐसा नहीं है कि डिफ्लेक्शन बढ़ती ही रहेगी बढ़ती ही रहेगी। एक टाइम ऐसा आएगा जिसके बाद डिफ्लेक्शन, आप करंट कितना भी इंक्रीज कर लो, डिफ्लेक्शन उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी, बिकॉज जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन थी कंपास की वो हो चुकी होगी, उससे ज्यादा डिफ्लेक्शन पॉसिबल है ही नहीं। तो स्टार्टिंग में आप जब करंट इंक्रीज करते हो, यस, तो डिफ्लेक्शन बढ़ती है, और किस डायरेक्शन में बढ़ती है, जिस डायरेक्शन में उस पॉइंट पे फील्ड है। जैसे यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे जब कंपास रखा है तो यहाँ पे जो फील्ड होगी वो आउट ऑफ द स्क्रीन होगी। मींस अगर आप ऐसे रोटेट करके देखते हो तो यहाँ पे जो फील्ड होगी वो स्क्रीन से आउट आ रही होगी। तो जो कंपास की नीडल है ये ऑलवेज किस में डायरेक्शन में पॉइंट करती है, नॉर्थ डायरेक्शन, और यहाँ पे जो नॉर्थ है वो आउट ऑफ द स्क्रीन है। तो ये जो कंपास है इसकी जो नीडल है वो पीछे की तरफ पॉइंट करेगी, ऐसे मतलब आउट ऑफ द स्क्रीन पॉइंट करेगी। बट आप एक टाइम के बाद आप कितना ही फील्ड बना लो, ये उससे ज्यादा फर्दर पॉइंट नहीं करने वाली, बिकॉज ये अपनी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पे पहुंच चुकी है। So this is question number 60. Now question number 17. It is established that electric current through a metallic conductor produces magnetic field around it. It is therefore similar magnetic field produced around the thin beam of moving alpha particles, neutron. Justify your answer. Means यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि जब भी करंट जाता है, करंट किसके थ्रू, मेटालिक कंडक्टर, जब भी करंट फ्लो हुआ किसी कंडक्टर के थ्रू तो क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो अब ये बोला गया है कि अगर हम करंट प्रोड्यूस करें विदाउट एनी कंडक्टर, कैसे, कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है या हमारे पास प्रोटॉन है या हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स है, हम उनकी क्या बना देते हैं, एक बीम बना देते हैं, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो क्या इससे करंट प्रोड्यूस होगा, तो आंसर इज यस। सॉरी, इससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, तो आंसर इज यस, बिकॉज जब बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्लो करेगा तो इससे क्या आएगा, हमारे पास करंट आएगा, और जब करंट आएगा तो करंट से क्या आती है, मैग्नेटिक फील्ड आती है। और नाउ सेकंड इज न्यूट्रॉन। जब हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल, इनके ऊपर जो नेट चार्ज होता है वो जीरो होता है। तो अगर नेट चार्ज जीरो है तो
जब ये फ्लो करेंगे तो कोई करंट नहीं होगा। अगर कोई करंट नहीं है तो कोई मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगा। तो नो करंट नो मैग्नेटिक फील्ड, नो चार्ज नो करंट नो मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज है तो करंट आएगा और करंट से मैग्नेटिक फील्ड आएगी। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट होता है। 18 की तरफ मूव करते हैं। What does the direction of thumb rule indicate in the right hand thumb rule? ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि राइट हैंड थंब रूल में जो थंब होता है वो क्या देता है आपको, करंट, और जो फिंगर्स होती हैं वो आपको देती हैं मैग्नेटिक फील्ड। और जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है इसके बारे में भी आपको बता चुके हैं। और ये दोनों अलग कैसे हैं? ये अलग ऐसे हैं कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, जो फ्लेमिंग का रूल है, उससे हमें क्या मिलता है, फोर्स की डायरेक्शन। और जो थंब रूल है, राइट हैंड थंब रूल, उससे हमें मिलती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ओके, तो हमारे पास क्या होता है, स्टार्टिंग में हमारे पास करंट होता है, तो करंट से हम क्या लगाते हैं, थंब रूल लगाते हैं। थंब रूल से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आती है। फिर जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है फिर हम लगाते हैं फ्लेमिंग रूल। कौन सा वाला, लेफ्ट वाला। और फिर हमारे पास आती है फोर्स की डायरेक्शन। तो ये प्रोसेस फॉलो करना होता है कि आप आई से थंब रूल लगा के मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो, और फिर मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से आप फ्लेमिंग्स रूल लगाते हो, लेफ्ट फ्लेमिंग रूल, फिर आप उससे फोर्स कैलकुलेट करते हो। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 18 इज कंप्लीट। 19 की तरफ बढ़ते हैं। Meena draws magnetic field lines of the field close to axle of a current carrying circular loop. As she moves away from the center of the circular loop, she observes that lines keep on diverging. How will you explain her observation? तो इसका जो डायग्राम है वो ऑलरेडी एक्सप्लेन आपको कवर कर चुके हैं। हम इसको जस्ट आपको शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देते हैं विद डायग्राम कि कैसे क्या चीजें होंगी। नाउ ये डायग्राम है किसी भी एक करंट कैरिंग लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। और इस लूप में जो हमारा करंट है, वो हमारा करंट यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि जैसे ही आप उससे दूर जाते हो तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का गैप बढ़ता जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, वाई? तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज एज वी मूव अवे फ्रॉम loop, then magnetic field decreases and decreasing magnetic field is represented by more spatially drawn magnetic field lines. मीन्स जैसे ही आप कॉइल से दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाती है, और जो वीक मैग्नेटिक फील्ड है उसको ड्रॉ करने का क्या मेथड होता है कि आप जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनके बीच का डिस्टेंस को बढ़ा देते हो। तो दैट्स वाई कि जब आप इससे लूप से दूर जाओगे तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनके बीच का आपको स्पेस इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20। सो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है
what does the divergence of magnetic field near the line of end of a current carrying straight solenoid indicate? तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी वहां पे आप इसको जाके चेकआउट कर सकते हो। और जो यहाँ पे डाइवर्जेंस मीना बोला गया, डाइवर्जेंस का मीनिंग होता है फैलना, और ये फैलता क्यों है ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलेनोइड से बाहर निकलती है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाती है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एक दूसरे से दूर जाना पड़ेगा, सो दैट उनके बीच का स्पेस इंक्रीज हो जाए। जितना ज्यादा स्पेस होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में उतना ही मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जो डाइवर्ट हो जाती है सोलेनोइड से बाहर निकलती है। ये हमने डिटेल में डिस्कस किया हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी प्रीवियस वीडियोस में। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, name 4 appliances where an electric motor, a rotating device that converts electrical energy to mechanical energy, used as an important component. In what respect motors are different from generators? तो ये क्वेश्चन अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम इसको अभी एज सच यूज नहीं करेंगे, सॉल्व नहीं कर रहे। जो बोर्ड स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर ये उनके उसमें है सिलेबस में है तो इसको वो खुद ट्राई कर सकते हैं, बट एज पर सीबीएसई अभी ये सिलेबस में नहीं है। नाउ 22, व्हाट इज द रोल ऑफ टू कंडक्टिंग स्टेशनरी ब्रशेस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर? ये भी नहीं है अभी आपके पार्ट में, तो हम इसको भी स्किप कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 23 में एसी और डीसी के बीच का डिफरेंस बताना है। ये हमने डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी डिस्कस कर चुके हैं, दोनों के ग्राफ्स डिस्कस कर चुके हैं हमारी इससे पहले वाली वीडियो में, वहां पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ फ्यूज यूज्ड इन सीरीज विद एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस? व्हाट शुड बी फ्यूज वी डिफाइन रेटिंग नॉट बी रिप्लेस्ड बाय लार्जर रेटिंग? तो हमने ये क्वेश्चन इन पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि फ्यूज क्या होता है और उसका रोल क्या होता है। नाउ हम इसमें एक स्पेशल पार्ट यूज करने स्टडी करने जा रहे हैं इसको कि सीरीज में ही क्यों यूज किया जाता है, और इसका जो दूसरा पार्ट है कि फ्यूज को जब रिप्लेस किया जाए तो उसको लार्जर रेटिंग से क्यों नहीं रिप्लेस करना चाहिए, ये भी हमने डिस्कस किया है। हम आपको इसको ब्रीफ इंट्रो दे देते हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 24, तो फ्यूज क्या है? फ्यूज इज ए device made of some special alloy which prevents electric instrument from any damage when current in instrument crosses certain limit। फ्यूज एक ऐसा डिवाइस है जो किसी एक स्पेशल अलॉय का बनता है जो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट को डैमेज से बचाता है जब उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर का करंट एक लिमिट को क्रॉस कर देता है। नाउ इसको सीरीज में क्यों लगाया जाता है? तो सपोज कीजिए हम दोनों को स्टडी करते हैं, एक सीरीज कनेक्शन को, एक पैरेलल कनेक्शन। यहाँ पे आपका डिवाइस है, अगर आप इसके, ये हमारा फ्यूज है। अब हमने आपको सीरीज कनेक्शन की खासियत बताई थी, ये इसका भी ड्रॉबैक है पर आप इसको एज एडवांटेज यूज कर सकते हो कि सीरीज कनेक्शन में क्या, अगर दो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं और उनमें से अगर एक खराब हो जाए तो दूसरा भी काम नहीं करता। मीन्स अगर यहाँ पे अगर फ्यूज ब्रेक हो जाए, अगर ये किसी रीजन की वजह से फ्यूज ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे कनेक्शन टूट जाएगा, और कनेक्शन टूटेगा तो डिवाइस तक कोई करंट नहीं जाएगा, और जब डिवाइस तक कोई करंट नहीं जाएगा तो डिवाइस खराब होने से बच जाएगा। बट अगर यही आप पैरेलल में यूज करते हो, दैट कि आप, ये तो हो गया सीरीज,
अगर आप इसको पैरेलल में यूज करने लग जाओ तो क्या होगा कि ये आपके पास एक फ्यूज है और सपोज कीजिए आपने दूसरा फ्यूज लगा दिया, ये दोनों पैरेलल में और यहाँ पे एक डिवाइस। तो क्या होगा, अब अगर आप ये डिवाइस 2 एम्पियर तक का करंट ले सकता है और आपने यहाँ से 2 एम्पियर का करंट भेजा तो यहाँ से 1 एम्पियर चला जाएगा और यहाँ से 1 एम्पियर चला जाएगा और ये वापस इसके पास 2 एम्पियर पहुंच जाएगा। बट जैसे यहाँ से 3 एम्पियर जाएगा तो यहाँ से फिर से वो डिवाइड हो जाएगा 1.5 एंड 1.5 में और डिवाइस के पास 3 एम्पियर करंट आएगा, डिवाइस खराब हो जाएगा, फ्यूज ब्लो नहीं होगा बिकॉज फ्यूज की रेटिंग 2 एम्पियर थी। सो दैट्स व्हाई फ्यूज को हम पैरेलल में यूज नहीं करते, फ्यूज को हमेशा सीरीज में यूज किया जाता है और जब वो सीरीज में डैमेज होता है वो डिवाइस को खराब होने से बचा लेता है। और इसको ज्यादा रेटिंग का क्यों नहीं लगाते, सपोज एक बार आपका फ्यूज डैमेज हो गया तो आपको उसको आइडेंटिकल रेटिंग से ही रिप्लेस करना है। अगर आप उसको ज्यादा रेटिंग से रिप्लेस करोगे, सपोज ये 2 एम्पियर पे डैमेज होता था तो अगर आपने यहाँ पे 3 एम्पियर का फ्यूज लगा दिया तो ये फ्यूज 3 एम्पियर तक मेल्ट नहीं होगा और उससे पहले आपका डिवाइस खराब हो जाएगा। तो दैट्स वाई उसको सेम रेटिंग का ही आपको रिप्लेस करना। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 24 इज फिनिश्ड। 25 पे बढ़ते हैं। Why does a magnetic compass needle pointing north and south in the absence of nearby magnetic get reflected by bar magnet or a current carrying loop brought near to it? Describe the some silent feature of magnetic lines of field concept. So सबसे पहले जो हमारा मैग्नेट होता है वो नॉर्थ साउथ की तरफ क्यों पॉइंट करता है। So let me show it with the diagram. Now आप स्क्रीन पे देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे दो डायग्राम्स हैं। फर्स्ट जो हमारी एक पिक्चर है वो रिप्रेजेंट करती है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड कैसे आती है। जो अर्थ का कोर है वहाँ पे मोल्टन लावा है, मोल्टन आयरन है, कोबाल्ट निकल ये सब है, मोल्टन फॉर्म में है और जब अर्थ रोटेट होती है तो उसमें समहाउ किसी टाइप का करंट फ्लो होता है। एग्जैक्ट रीजन कोई हमारे पास बिल्कुल डेफिनेट रीजन नहीं है इसके रिगार्डिंग, बस जस्ट थ्योरीज हैं बिकॉज हम इतने अंदर अर्थ के अंदर डिग करके नहीं पहुंच सकते तो हमें वहाँ पे एक्चुअल फिनोमिना क्या है हो रहा है वो हमें नहीं पता। वी जस्ट जो साइंटिस्ट हैं वो भी जस्ट एक आइडिया लगा सकते हैं ऑन बेसिस ऑब्जर्वेशन। तो जो बेस्ट थ्योरी है वो ये है कि जो अर्थ की कोर है उसके अंदर मोल्टन फॉर्म में आयरन है और जब अर्थ रोटेट होती है तो उसमें करंट फ्लो होता है और उस करंट फ्लो होने की वजह से जो अर्थ है वो एज ए मैग्नेट बिहेव करती है। अब ये जो मैग्नेट है बहुत ही वीक मैग्नेट होता है, बहुत ही वीक मैग्नेटिक फील्ड होती है, बहुत ही स्मॉल होती है बट सफिशिएंट होती है कि एक अगर आपके पास नॉर्मल सा कोई मैग्नेट है तो वो उस पर इतना फोर्स लगा सके कि वो उसको अपने हिसाब से ओरिएंट करवा दे। बट जैसे ही आप कोई एक अनदर मैग्नेट लेके आते हो इसके पास, सपोज कीजिए आपके पास ये मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ साउथ है, तो अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो आपकी तो इस तरह अलाइन हो जाएगा बिकॉज साउथ पोल नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है और ये साउथ इसके नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा तो ये ऐसे अलाइन हो जाएगा ना। अब आपके इसके पास क्या ले जाते हैं, एक बहुत बड़ा मैग्नेट ले आते हैं। इस मैग्नेट की फील्ड अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन में ज्यादा है तो उस सिनेरियो में क्या होगा, ये मैग्नेट अर्थ की फील्ड को ओवर पावर कर देगा और अब ये मैग्नेट इसके हिसाब से ओरिएंट होगा ना कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से ओरिएंट होगा। सो दैट्स वाई जो जब भी आप एक मैग्नेट के पास दूसरा मैग्नेट लेके आते हो तो वो अपनी ओरिएंटेशन बदल देता है बिकॉज अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एक नॉर्मल से मैग्नेट के कंपैरिजन भी बहुत स्मॉल होती है और दैट्स वाई वो इतना फोर्स नहीं लगा पाती कि वो उसको अपने तरीके से ओरिएंट करके रख पाए। नाउ साइलेंट फीचर बताने हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, तो हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे वो नॉर्थ टू साउथ मूव करती हैं आउटवर्ड, इनवर्ड साउथ टू नॉर्थ मूव करती हैं एंड कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। तो ये चीज हम सब थ्योरी में भी डिस्कस कर चुके हैं और हमारे जो क्वेश्चंस हैं हमने इसको वहां पे भी डिस्कस किया है डिटेल में, तो आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 26,
तो हम यहाँ पे एक लेबल डायग्राम बनाना है, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग स्ट्रेट रोड, और इसमें राइट हैंड रूल कैसे अप्लाई करेंगे ये भी हम डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं ऑलरेडी, बहुत ही डिटेल में। तो हमारी प्रीवियस वीडियोस में जहाँ पे हमने क्वेश्चंस किए थे, हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसमें हमने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको उसका आंसर विद डायग्राम मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए सर्कुलर लूप, ये हमने जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, और हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज की है हमने उसमें भी हमने इसको डिस्कस किया है डिटेल में, तो वहां पे आप जाके चेकआउट करेंगे तो आपको इसका आंसर वहां पे मिल जाएगा। विद दिस मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये है क्वेश्चन नंबर 28। तो हमें ये बताना है कि करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगता है, इसको शो करने के लिए आपको एक एक्टिविटी डिस्कस करनी है। तो ये एक्टिविटी हमने जो हमारी प्रीवियस एक्सरसाइज थी उसकी सेकंड लास्ट और लास्ट वीडियो में शो की हुई है, सेम क्वेश्चन है, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड लगा के हमने आपको डायरेक्शन भी निकाल के दिखाई है, शो की है कि कैसे डायरेक्शन आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन भी ऑलरेडी कवर्ड है। आई विल आस्क यू टू वॉच आवर प्रीवियस वीडियो, वहाँ पे हम इसको डिटेल में कवर कर चुके हैं। सो विद दिस हमारे क्वेश्चन नंबर अप टू 28 कवर होते हैं, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं 29 की तरफ। एंड ये जो रिमेनिंग के 3 क्वेश्चंस हैं ये अभी एज पर सीबीएसई के सिलेबस के अंदर नहीं आते, जो करंटली 2024-25 का सिलेबस है ये उसके अंदर नहीं आते, बिकॉज यहाँ पे पहले क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक मोटर है, दूसरे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, एंड थर्ड में एसी जनरेटर है। सो ये सिलेबस के अंदर एज सच अभी नहीं आते, तो हम इनको कवर नहीं करेंगे। अगर ये किसी स्टेट बोर्ड के अंदर आते हैं, और अगर आप एक स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, हम इनके लिए एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना देंगे, सो दैट आप इनको इंडिविजुअली कवर कर पाए। सो विद दिस हमारी ये वीडियो भी फिनिश होती है, और इसके साथ हमारी सेकंड एक्सरसाइज फिनिश होती है। अब इसके बाद हमारी एक थर्ड एक्सरसाइज है जो हमें कवर करनी है, और इसके साथ ही इस चैप्टर के लिए क्वेश्चन बैंक सीरीज भी फिनिश हो जाएगी। सो विद दिस, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई हो, आपको अंडरस्टैंडिंग मिली हो, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी बेटर हुई हो, देन प्लीज लाइक दीज वीडियोस, share these videos, and subscribe to our channel, because more you share, more you subscribe, more YouTube algorithm detect these videos and recommend them more. With that, more people watch these videos and they get help, and also it is also motivating factor for us that yes, there are people who need such type of content, so we should make that type of content. So please like this video. If you like our work, share these videos and subscribe to our channel. With this, I take leave for now. We will meet in next video with another exercise. Till then, thanks for watching.